ए चलो चलो पीछे हटो, चलो चलो जाओ यहाँ से। गांधी की किताब ज्यादा ही पढ़ रही है। मैं भेजा पका दिया। वन इंडिया वन धूप में तो अपनी वाली काली हो जाएगी यार। वन इंडिया वन पाइपलाइन। चलो 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 छाव में करो, साइड में रोड मत ब्लॉक करिए माँ। वन इंडिया वन पाइपलाइन। चलो साइड में हटो। अरे कोई माझी को ले जाकर नींबू पानी पिलाओ यार। वन इंडिया वन पाइपलाइन। अब सही धूप तो नहीं लगी। वन इंडिया वन पाइपलाइन। धूप बहुत है, दुपट्टा ओढ़ो दुपट्टा। वन इंडिया वन पाइपलाइन। Imbecile. मत करो मत करो। जैमर ऑफ करो। जैमर बंद करो। ओवर। मत करो पानी का व्यापार मत करो। मत करो जैमर ऑन कर मत दे। करो। ये इंग्लिश ऑनलाइन कहाँ सीख सकते हैं यार। गूगल उसी के लिए तो है बड़े भाई। सबको अरेस्ट करने का ऑर्डर है। अभी करना। यस सर। चलो चलो अंदर चलो, बस में चलो। चलो चलो बहस नहीं, अंदर अंदर। करके चलो जल्दी करो। ये चोट कैसे लगी? किसी पुलिस वाले ने मारा क्या? कुछ नहीं। अरे चलना, क्या टाइम पास कर रही है? चलो ऊपर, तुम भी आ जाओ। जल्दी। चालू तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो ना। मैं यहाँ आंदोलन करने आई थी ना, तो मैं भी बस में ही जाऊंगी। ओके मैडम। बस में क्यों है? गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं मैडम, बस में पुरानी याद ताज़ा करने आया। पकाओ। சாலு ஒருவேளை இன்கேஸ் அந்த 3 வாட்டியும் எனக்கு தைரியம் வந்து உங்ககிட்ட ஐ லவ் யூன்னு சொல்லியிருந்தா நீ என்ன பதில் சொல்லியிருப்ப? அது என்கிட்ட கேட்டா டெக்க நல்லா ரீவைண்ட் பண்ணி அந்த 3 இடத்துக்கு போய் அந்த ஷாலி கிட்ட கேளு. ஓகே? सभी को शहना अख्तरी का नमस्कार। आइए छाया गीत में प्यार से प्यार करें। ए वहाँ कहाँ जा रही है? रुक। तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी जान नी तल्ली निक्या दे, मेरी प्यार मेरी दिल नी कंज क्या दे। मेरी जान ये नंजल तक्या दे, मेरी प्यार मेरी दिल ये न விட்டுட்டு போகாதே. உன்னை பார்த்தாலே பூக்கும் பூந்தோட்டம் என்ன நீ செஞ்ச பெண்ணே. தூர நின்னாலும் மூச்சில் உன் வாசம் போத நீ தந்த கண்ணே. हाँ हेलो सर, इसके बेटे की तबीयत खराब है, भेज दूँ इसे? जाओ। मेरी जान ये न तली बिड़ा दे, मैं दुआ वो दुआ ये न सुते बिड़ा दे. मेरी जान ये न கொன்னு போடாதே, அழக பதமா என்ன செஞ்சிட்டு போகாதே. உன்னை பார்த்தாலே பூக்கும் பூந்தோட்டம் என்ன நீ செஞ்ச பெண்ணே. தூர நின்னாலும் மூச்சில் உன் வாசம் போத நீ தந்த கண்ணே. என்னடி அடி இருக்கு உனக்கும் எனக்கும் கனவுல. दे दिया मैंने, लव लेटर दिया क्या? मैच करता है। चल जाने दे। ஷாலு டெக்க ஒரு தடவை ரீவைண்ட் பண்ணுவோமா? என்ன? அதான் நீ சொன்னியே அதே 29C நாம 2 பேர் மட்டும் தனியா. நம்ம 2 பேரும் தனியாவா இருக்கும்? டேய் தம்பி இறங்கி ஓடுறேன், அந்த போட்டோ மட்டும் எனக்கு அனுப்பிச்சிரு. உண்மை சொல்லு, உனக்கு என்ன பிடிக்கும்? ஆமா, பிடிச்சிருந்தது. ஆனா பழைய விஜயம். நான் அப்படியே தானே இருக்கேன், என்ன மாறிட்டேன்? அந்த விஜய் அவனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செஞ்சான்.
பிடிச்ச மாதிரி வாழ்ந்தான். ஆனா இப்போ நீ அடுத்தவங்களுக்கு உன்னை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காகவே வாழற. உனக்கு இதெல்லாம் புரியாது. உங்க அப்பாவை பத்தி தானே சொல்ல வரேன். இன்னும் எத்தனை நாள் நீ இதே பேசிக்கிட்டு இருக்க போற? உங்க அப்பாவோட இமேஜுக்கு பயந்தே வாழ்ந்துட்டு இருக்க. நீ உன்னையே மறந்து டிவில உன் போட்டோ வரணும், பேனர்ல உன் போட்டோ வரணும், அடுத்தவங்க உன்னை பத்தி பேசணும்னு வாழ்ந்து வாழ்ந்து வேக்காயிட்டு விஜி. அதெல்லாம் விடு. உனக்கு எனக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காது? இதெல்லாம் அவ்வளவு சிம்பிள் இல்ல. நீ இப்படி ஃபேக்கா ஷாலோவா இருக்கும்போது கரையே இல்லாமல் வாழ்கிறவங்களுக்கு என்னோட வழி புரியாது. நீ எக்ஸாம் எழுத போனப்பா உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்டாங்க? ஹால் டிக்கெட் இருக்கான்னு தானே கேட்டாங்க. என்கிட்ட என்ன கேட்டாங்க தெரியுமா? உனக்கும் உங்கள் அப்பனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வான்னு சொன்னாங்க. பவானி அக்கா 8 வாரம் தள்ளி போச்சு. யாரா? எங்கள் அப்பனால. டிவியில் என் ஃபோட்டோ வரும்போது நியூஸில் என் பேர் கேட்கும்போது எங்கள் அப்பா பண்ண தப்ப நான் சரி கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். ஒவ்வொரு தடவை உங்ககிட்ட என் லவ்வை சொல்ல வரும்போது நீ என்ன மற்றவங்கள மாதிரி நினச்சிருவோன்னு பயந்துக்கிட்டே இருக்க. மொதல் தடவையா இன்னைக்கு தான் அந்த பயம் போச்சு. நீ என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு நினச்சேன். நீ என்னை புரிஞ்சுக்கல. எங்கள் அப்பனால வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ இழந்திருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொண்ணையும் இழந்துட்டேன்னு நினச்சிக்கிறேன். வண்டி நிப்பாட்டுங்கண்ணே. ए विजय, जरा इधर आना। क्या हुआ? राजा जी भवन के आंदोलन को तुम्हें कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था क्या? हाँ। तो वहाँ जितने लोग आए थे उनकी डिटेल्स तो होगी? पूरी FIR है। तो वो कॉपी मुझे दे दो। अभी देता हूँ। आखिर बात क्या है? अरे यार, वहाँ से एक इम्पोर्टेंट फाइल गायब हो गई है। राजा जी भवन से? हाँ यार। CCTV में कुछ मिला? कुछ नहीं, वहाँ आंदोलन को शांत करने के लिए जैमर लगाए थे ना, इसीलिए सारे सिक्योरिटी कैमरे बंद हो गए थे और उसी वक्त किसी ने अंदर जाकर के गेम बजा दिया। वहाँ ऐसी कौन सी फाइल थी? इधर राजा जी भवन अंग्रेजों के टाइम पर बना था और लोगों का कहना है कि अंग्रेजों ने उसमें सुरंग बनाई थी। इस मिशन को अंजाम दिया है, सबकी डिटेल्स अंदर है यार। मतलब रॉ रिकॉर्ड रूम? हाँ, और आर्मी के पुराने राज भी उसी में दफन है। कुछ कोड रेड और रेड लेटर की बातें चल रही थी वहाँ पर। जिसने भी चुराया वो देशद्रोही है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है विजय। CBI, रॉ सब लोग उसी फाइल को ढूंढने में लगे हुए हैं। ला ये फाइल मुझे दे, मैं निकलता हूँ, वरना मुझे ही गद्दार घोषित कर देंगे। चलता हूँ विजय। हेलो वकील साहिबा, पूछताछ के नाम पर पुलिस हम सबको मार रही है। आज जल्दी आ जाओ। रंगम्मा शांत हो जा। क्या हुआ है? आज हम लोग ने जो आंदोलन किया था ना, वहाँ से पुलिस ने जिन लोगों को भी पकड़ा है सबको बुरी तरह से पीट रही है, मार रही है जबरदस्ती। पुलिस को कोई बयान मत देना। मैं तुम्हें 10 मिनट में कॉल बैक कर रही हूँ। ओके? हेलो। ये सब क्या चल रहा है विजय? प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर आखिर पुलिस लाठीचार्ज कैसे कर सकती है? किसने दिया लाठीचार्ज का ऑर्डर? जुर्म करना एक गुनाह है, लेकिन गुनहगार का साथ देना उससे बड़ा गुनाह है। बिना केस को जाने उनकी वकालत मत करो। पुलिस अपना काम कर रही है और उसे अच्छे से करना आता है। महेश, इधर ही हूँ, बोलो ना। अब्दुल कहाँ है? अब्दुल अर्जेंट काम कर रहा है। और भैंसे की तरह सो रहा है। आंदोलन के दिन की फोटो दिखा। हे विजय, कोई तड़कती भड़कती न्यूज लेकर आओ ना यार। बहुत दिनों से हमारे अखबार में कोई ऐसी न्यूज नहीं छपी जिसे पढ़कर लोगों के होश उड़ जाएं। हाँ, सही है ना? ये क्या किया है तूने? अच्छी तो है। आंदोलन की फोटो नहीं है, वो दिखा। नेक्स्ट नेक्स्ट। इतनी है? हाँ, जो खराब आई थी वो रिसाइकल बिन में डाल दी। चल वही दिखा। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये चोट कैसे लगी? सर, इसके बेटे की तबीयत खराब है, ये घर जाना चाहती है। सर ने कहा तुम जा सकती हो। मुझे भेजने के बाद चारों डिलीट कर दे। ठीक है सर, हो जाएगा। क्या भाई, यूं आया और यूं जा रहा है? कोई सनसनी न्यूज देना। तुम्हें सनसनी चाहिए थी ना? सुबह एक तड़कती भड़कती खबर मिल जाएगी। कुछ बताएगा भी? कैसे? एक इम्पोर्टेंट केस है। बोलना विजय। एक औरत सुबह से लापता है, उसका नाम समीरा है। कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दो। रंग गोरा है, 30-32 साल की होगी। ए भाई, बाइक हटाओ, गाड़ी निकालनी। ब्लू सूट और ग्रे दुपट्टा पहना है। सुन, CBI का फोन आ सकता है। CBI से? लगता है हाई प्रोफाइल केस है यार। हाँ, मुझे एक लीड मिली है। अब किसी के सामने अपना मुंह मत खोल देना,
लोकेशन मिलते ही सबसे पहले मुझे बताना, उसके बाद बाकियों को। अच्छा ठीक है। क्या हुआ मामा? तू अब तक घर क्यों नहीं आया बेटा? एक बड़ा केस हाथ लगा है। कौन सा केस? अब तक मुझ पर देशद्रोही का जो दाग लगा है ना, हाँ। उसे एक देशद्रोही को पकड़कर मिटा दूंगा मामा। आप खा पी के सो जाओ, मैं सुबह मिलता हूँ आपसे। 29/6। सर आपने ऑर्डर दिया था। हाउस नंबर क्या है? हाउस नंबर 29/6। थैंक यू सर। हेलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। हेलो हेलो पुलिस अंकल, एक चोर मेरे घर में घुस रहा है, जल्दी से पुलिस अंकल को भेजिए। बिल्कुल हट्टा कट्टा है, जल्दी से प्लीज पुलिस वालों को भेजिए। दो फोन दो। सर मैं इंस्पेक्टर विजय प्रकाश बोल रहा हूँ। फोन नहीं लगाया था? लगा था पुलिस का नाम सुनकर तुम डर जाओगे, लेकिन तुम नहीं डरे, लगता है खानदानी चोर हो। मैं पुलिस हूँ यार। यूनिफॉर्म तो पहना ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? इधर है, वो देख मेरी पुलिस जीप। ओह, तो तुमने पुलिस स्टेशन से जीप भी चुरा ली क्या? मैं पुलिस हूँ यार। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? हाँ, तुम मेरी मम्मी को पकड़ने आए हो क्या? तुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, पुलिस वाले मम्मी को पकड़ने आ जाते हैं। नहीं, सिर्फ बात करने आया हूँ। हाँ तो मम्मी कहीं बाहर गई हुई हैं, तुम जाओ। मैंने बोला ना मम्मी घर पर नहीं है। इस केस तुमने बनाया? हाँ। तुम्हारी मम्मी का लैपटॉप है? हाँ। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड किसी को नहीं बताते। $@RDR। आखिरी बार मम्मी से कब बात की थी? शायद 2 घंटे पहले। कह रही थी मैं केक भेजूंगी, वो खा लेना। उन्हें रात में कोई जरूरी काम था, इसलिए बोली सुबह आऊंगी। और फोन कहाँ से किया था? केक भेजा तो बेकरी में ही होंगी ना, ब्यूटी पार्लर से केक थोड़ी भेज सकती है। ये स्मार्ट वॉच किस लिए? मम्मी ने दी है ताकि वो मुझे ट्रैक कर सके। फिर तो इससे मम्मी को भी ट्रैक कर सकते हैं हम लोग। स्मार्ट वॉच क्यों ली? मम्मी को ढूंढने के लिए। मिल जाएंगी तो वापस दे दूंगा, ध्यान रखो। खुद दरवाजा और ताला तोड़ दिया और अब कह रहे हो ध्यान रखना। जय हिंद सर। जय हिंद। ये नाकाबंदी क्यों लगी? सरकारी कागजात चोरी हो गए। पुलिस को 35 से 40 उम्र की एक औरत पर शक है। चलो बैरिकेड हटाओ। बैरिकेड हटाओ। क्या वो मेरी मम्मी को ढूंढ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्ते साहब। इस औरत को पहचानते हो? नहीं साहब, नहीं पहचानता। सर मैंने देखा है। कब? करीब 2 घंटा पहले। कहाँ? वो वहाँ बैठी हुई थी सर, फोन पे बात करते करते गिफ्ट हैम्पर पैक करवाया। हेलो मैम, ये हैम्पर दे टेक अवे और डिलीवरी मैम। डिलीवरी। अपना एड्रेस बताया और पेमेंट किया और किसी को देखकर पीछे के दरवाजे से निकल गई। दरवाजा खोलो। सर चाबी काउंटर पर है। लेकर आओ। एक मिनट रुक। उसे ढूंढने कोई और आया था? नहीं सर, कोई नहीं आया था। सर 4 लोग गाड़ी से उतरे और बाहर किसी से कुछ पूछ रहे थे। कैसी गाड़ी थी? सफेद रंग की गाड़ी थी और गाड़ी की प्लेट पर 2 तलवारें बनी हुई थी और सरकारी मोहर भी थी।
इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। गणेश 9821180260। कॉल करता हूँ। ओके सर। हेलो। उसकी लोकेशन मिल गई। ईसीआर में कोई बेकरी? अबे मैं उसी बेकरी में हूँ। वो भाग गई। भाग गई वहां से? उस पूरे एरिया में बैरिकेड लगा के लॉकडाउन किया है। उसका वहां से भागना बिल्कुल नामुमकिन है। बेटा ये बताओ, इस एरिया में तुम्हारी मम्मी को कोई जानता है? नहीं पता। चॉकलेट खाओगे? और कितनी चॉकलेट खिलाओगे मुझे? दांत भी नहीं है। तो आइसक्रीम चलेगी? कुप्पू स्वामी, नंबर 5, फर्स्ट मेन रोड, इंदिरा नगर। आप कौन? आप समीरा को जानते हैं? पर आप कौन है? इंस्पेक्टर विजय प्रकाश। समीरा पर 124A देशद्रोह का आरोप लगा है। अगर आपने उसकी मदद की तो आप पर भी वही आरोप लगेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा उस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो सब मैं देख लूंगा। आप उसे कैसे जानते हैं? उनके बेटे का मैं ही इलाज कर रहा हूँ। जब से वो पैदा हुआ है तब से उसे जानता हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे तुमसे सब कुछ सच बताना ही होगा। टिमी को सार्कोइडोसिस नाम की बीमारी है। इससे उसके लंग्स पर बुरा असर पड़ा है। उसके पास ज्यादा से ज्यादा 5 साल है। इसकी वजह क्या हो सकती है डॉक्टर? किसी भी डॉक्टर से पूछोगी तो वो इसे एनवायरमेंटल कॉज ही बताएंगे, या फिर ये कहेंगे कि तकदीर में लिखा था। लेकिन तुम्हारा फैमिली फ्रेंड होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि इसका कारण है प्लास्टिक की पानी की बोतल। जब पानी की बोतल धूप में रखी होती है तो प्लास्टिक में मौजूद बीपीए नाम का केमिकल पानी में मिल जाता है, और टिम्मी ने वो पानी पी लिया जिसमें बीपीए मौजूद था। मम्मी, क्या हम सांता क्लॉज से सिर्फ अपने लिए विश मांग सकते हैं? तुम्हें किसके लिए विश मांगनी है? मैं चाहता हूँ कोई मेरी तरह बीमार ना हो और तुम्हारी जैसी अच्छी मम्मी कभी ना रोए। हम सांता क्लॉज से ये विश मांग सकते हैं? तुम अपनी विश पेपर पर लिखकर इस ट्री के पास रख दो, वो पूरी होगी। डॉक्टर, इसका इलाज नहीं है। मेरे बेटे की बीमारी दिखाकर क्या हम उन कंपनीज को बंद नहीं करवा सकते? इसे प्रूफ करना मुश्किल है। बीपीए सिर्फ उस समय ट्रेस होता है जब पानी बोतल में रहता है, शरीर में जाने के बाद नहीं। इस पूरे शहर में हर रोज 650 टैंकर्स और 700 ट्रक्स भेजा जाता है। कुल मिलाकर 2,50,000 लीटर पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, समझी क्या? और तू 10 रुपए की बोतल पकड़कर मुझे धमका रही है? जाकर किसी तालाब या झील से पानी लेकर आ, मैं टेस्ट कर दूंगा। तो आप इस बोतल का पानी टेस्ट नहीं करेंगे? ये रूल कहाँ है, मुझे बताएंगे क्या? अरे रूल्स गया तेल लेने, रूल्स नहीं मानता मैं। यही बात कैमरा के सामने बोलकर दिखाइए। क्या मैडम, आपने तो कैमरा निकाल के डरा दिया। पहले से बताना था ना, मैं चेहरे पर ब्लीच विलीच करा के आता। चुपचाप निकल यहाँ से, जा। बीपीए का नाम लेके मेरा बीपी बढ़ा दिया। क्या आप ये बात जानते हैं कि आप पब्लिक की हेल्थ से खेल रहे हैं? मैडम, बोतल पर लिखा होता है कि इस्तेमाल के बाद उसे क्रश कर दें, उसे धूप से दूर रखें। हर बोतल पर साफ साफ वार्निंग लिखी होती है। फिर हम कैसे जिम्मेदार हुए? आपके ब्रांड का नाम हर भाषा में लिखा होता है, बड़े अक्षरों में, लेकिन वार्निंग लेबल छोटे अक्षरों में लिखा होता है ताकि कोई उसे पढ़ न सके। आप लोग ऐसा कंपनी को बचाने के लिए करते हैं, जनता को बचाने के लिए नहीं। और इस मामले को लेकर मैं चुप नहीं बैठूंगी, कोर्ट तक जाऊंगी। वाटर कंपनीज के खिलाफ उसने आंदोलन भी किया। वो तो दुनिया को सच्चाई बताना चाहती थी। आप उसे देशद्रोही कैसे बोल सकते हैं? हर साल लगभग 2000 बच्चे इस बीमारी का शिकार होते हैं जिसका इलाज भी नहीं है, और हम उन्हें ये नहीं बता पाते कि इस बीमारी का कारण बीपीए है। इसलिए देशद्रोही वो नहीं, देशद्रोही मैं हुआ। वो तो ये चाहती है कि दूसरे बच्चों को ये बीमारी ना हो। वो तो समाज के लिए अच्छा कर रही है सर। खाना खाओगे? तुम्हें दवाई भी खानी होगी ना? डॉक्टर ने सब कुछ उगल दिया क्या? जो होना है हो जाएगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो गाड़ी स्टार्ट करो, मम्मी को ढूंढते। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश, इंस्पेक्टर विजय प्रकाश। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश हियर। आप किसी 35 साल की औरत को ढूंढ रहे थे ना, जिसने ग्रे दुपट्टा और ब्लू पंजाबी सूट पहना हुआ था? हाँ, इस वक्त कहाँ है वो? सर, वो हमें जिंदा नहीं मिली, हमें उसकी लाश मिली है। पीछे 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 रहिए।
लड़के, ये तेरी माँ है क्या? चलिए चलिए। अरे कहाँ ना। अरे ऐसे गर्दन मत हिला, मुंह से बोल। क्या आप आगे नहीं जा सकते? मम्मी पीछे हटिए। चलो चलो। बॉडी की पहचान हो गई है, जल्दी स्ट्रेचर लेके आ। तो यहाँ खड़े रहे, चलो जल्दी करो। राजा जी भवन से समीरा ने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चुराए थे। जब उसे लगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसने खुदकुशी करना ही बेहतर समझा। हमें लगता है कि उसे इस काम के लिए काफी पैसे मिले होंगे। क्या आप बता सकते हैं उस डॉक्यूमेंट में क्या था? वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। हम भी नहीं जानते उसमें क्या जानकारी थी, लेकिन उन्होंने देश से गद्दारी की है, मिलिट्री के सीक्रेट्स चुराए। उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन देश के लिए वो एक गद्दार ही रहेंगी। हम उनके रिलेटिव से भी पूछताछ करेंगे। उन पर भी देशद्रोह का इल्जाम लग सकता है अगर वो अपराधी साबित होते हैं। मना किया ना, हटो पीछे। मेरे जाने के बाद मम्मी क्या करेंगी, ये बात तो हमने की थी, लेकिन मम्मी के जाने पर मैं क्या करूँगा, ये बात नहीं की। अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे परिवार में और कोई है? विक्टर नाना है। क्रिसमस पर मम्मी ने प्रॉमिस किया था कि वो सांता क्लॉज को एक लेटर भी पोस्ट करने वाले थे। लेटर तो है, लेकिन मम्मी नहीं है। क्या आप मेरी मदद करेंगे इस लेटर को पोस्ट करने में? सर, हमें समीरा के बेटे से पूछताछ करने के ऑर्डर्स मिले हैं। इसे कहाँ ले जा रहे हो? सॉरी सर, नहीं बता सकता, प्रोटोकॉल। सर ये क्या कर रहे हैं सर? बच्चा बेगुनाह है सर। बेटा जो भी पूछे बता दें, झूठ मत बोलना। ये लो अपनी घड़ी पहनी। ये लोग तुम्हें विक्टर नाना के पास ले जा रहे हैं। विजय, ये देख, इस केस में सबसे पहली एफआईआर तूने दर्ज की थी और खोज भी तूने की है। उसी केस की फाइल मैं निकलवा कर लाया हूँ। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश ने किया देशद्रोही का खात्मा। कल सारे न्यूज़पेपर्स में बड़ी बड़ी हेडलाइंस होगी फ्रंट पेज पर। तू फेमस हो जाएगा। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका है? ये एक नेशनल केस है यार। जाने दो। अरे विजय, क्या हुआ तुझे? कुछ तो गड़बड़ है। वो औरत देशद्रोही नहीं हो सकती। कल रात को ही उस पर केस हुआ था और आज सुबह ही उसकी लाश भी मिल गई। वो सुसाइड बताकर केस बंद करना चाहते हैं। ये एक साजिश है मामा। उस बच्चे को बेबस देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। आज वो मेरी और मैं आपकी जगह हूं। विक्टर को ढूंढना होगा। विजय, मामा, मेरा बाप देशद्रोही था, इसलिए मैं इतना कुछ सहता रहा। इसकी माँ देशद्रोही नहीं है, इसलिए इसके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ यार, पर सुन तो। नहीं मामा। विजय, डॉक्टर ने रिपोर्ट में सुसाइड लिखा है। उसका मर्डर हुआ है। तुझे कैसे पता? फेफड़ों में 4 लीटर पानी मिला है। तीसरे पेज पर देखो, फेफड़ों में पीने का पानी था। समंदर का पानी खारा होता है मामा। और 5वें पेज पे लिखा है कि पानी में 75% क्लोरीन था। उसे क्लोरीनेशन टैंक में मारा गया है। तो अब क्या करना है? इतना बड़ा क्लोरीनेशन टैंक कहाँ हो सकता है? स्विमिंग पूल तो नहीं हो सकता। वाटर कंपनी और कहाँ हो सकता? मेट्रो वाटर। हाँ सर, सर सर, ये तस्वीर देखिए ना। मुझे एक बात बता, वो पानी के टैंकर में डूब के नहीं मरी ना, तो यहाँ के क्यों भेजा खा रहा है? आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं कोऑपरेट नहीं कर सकता। हाँ, पर दुख जता सकता हूँ। इतना दुख? इससे ज्यादा नहीं। हो गया, अब जा। विजय, ये कुछ ज्यादा ही दुखी हो गया ना?
मामा हाँ? ऐसे डायरेक्ट पूछोगे तो कौन तुम्हें बताएगा? मेरा तरीका अपनाते हैं। आ जाओ, काकी से पूछते हैं। काकी, गजरा कैसे दिए? छोटा गजरा 5 का है और बड़ा गजरा 6 का है। बड़ा लेके जा। ले भी गया तो भी मेरी बहन लगा नहीं पाएगी। क्यों, तेरे बहन के भी लंबे बाल नहीं है क्या? ये लो, खुद ही देख लो ना। ये तेरी बहन है क्या? क्यों, इसे जानती हो क्या? तो क्या, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू सबको समझाती है पर कोई सुनता क्यों नहीं है? ये बोतल का पानी अच्छा नहीं है क्या? पानी तो अच्छा है पर इस बोतल में बीमारी है। लेकिन हम ये सोच के लेते हैं ये पानी से बीमार नहीं पड़ेंगे। घर घर साफ पानी पहुंचाना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वाटर माफिया सरकार से मिलकर पानी गंदा कर देते हैं। उसके बाद बोतल का पानी खरीदने पर हमें मजबूर करते हैं। तूने सही कहा बेटा, मुझे भी एक मटके के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं। मैं गरीब बुढ़िया रोज 10 रुपए कहाँ से लाऊं? ये वाटर माफिया जमीन से पानी निकालकर उसे स्टोर करते हैं और फिर अच्छे दामों में हमें बेचते हैं। फिर तो फूलों पे छिड़कने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। अरे फूल उगाने के लिए ही पानी नहीं मिलेगा। तुम्हारी बहन ने ये सब रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है वो पानी के फैक्ट्री तक गई थी। तू अपनी बहन का ख्याल रखना बेटा। ठीक है काकी। जा, ये गजरा उसे दे देना। देख विजय, एक ही कुएं में से पानी निकाल रहे हैं। इस्तेमाल का पानी सस्ते में बेचेंगे और पीने का पानी महंगा। सिर्फ टैंकर का रंग बदलकर ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं। क्या बोला? 2000? अबे पागल हो गया क्या? फाइनल रेट 3000। इस इलाके का पूरा पानी मैं कंट्रोल करता है। लोगो, कौन है? तू जानता है इसको? अच्छा, इसका केस तू हैंडल कर रहा है क्या? तू सिर्फ आया नाम में जवाब देना। अगर ना दूं तो क्या करेगा? एसीपी को फोन मारेगा? रुक, मैं ही मारता हूँ। मामा, इसका एसीपी के साथ उठना बैठना है। सॉरी बोल दो। अभी सॉरी बोलता हूँ। सॉरी सर। सॉरी सर। मारो मत सर। गलती हो गई, माफ करो सर। गुस्ताखी माफ सर। सॉरी। तू भी सॉरी बोल दे। मामा का सॉरी कम पड़ा तो मैं भी सॉरी बोलूं। नहीं, इतना काफी है सर। क्यों मारा समीरा को? सर, मैंने उसे नहीं मारा। समीरा ने सबका जीना मुश्किल कर दिया था। वो वाटर कंपनीज के लिए खतरा बन गई थी। कितनी कंपनियां सील हो गई। जब बात बड़ी कंपनीज पे आई तो वो लोग चुप थोड़ी बैठेंगे सर। उसने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसे देखकर सारी वाटर कंपनीज डर गई। उसने सबकी पोल खोल दी सर। अचानक से एक दिन वीडियो डिलीट हो गया और समीरा भी मर गई सर। जरूर ये काम उसी कंपनी का होगा सर। कौन सी कंपनी? हैप्पी ड्रॉप्स, सेक्टर 104। हाँ, एयरपोर्ट पर ही हूँ सर। यूनिफॉर्म भी पहना हुआ हूँ सर। ठीक है, मैं अलर्ट रहूंगा। ओके सर। कैसा पुलिस वाला है, झूठ तो समझता ही नहीं। ये कंपनी तो सील हो चुकी है। तो अंदर गाना कौन सुन रहा है? पता नहीं। ये अरे बंदर की तरह चढ़ गया तू। विजय रुक, मैं भी ट्राई करता हूँ। मामा, कंपनी की हालत देख के लग नहीं रहा है कि ये सील हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि मामा, आपसे बड़ा तो आपका पेट हो गया है। एक्सरसाइज को टाइम नहीं मिलता ना। थोड़ा कम खाया करो। हेल्प मी। नीचे पत्थर लगाओ और आ जाओ। पत्थर? एक मील का पत्थर तो मिल गया। अगर 2 क्लास और पढ़ लेता तो कोई सरकारी बैंक में एसी में बैठ के टाइम पास कर रहा होता। कसम से यार, मेरी माँ बोल बोल के थक गई लेकिन मैंने कभी किताब नहीं उठाई, इसलिए आज मील का पत्थर उठाना पड़ा है। सबको बहला के इसने लूटा, चाट लेगा पत्थर झूठा, मर्द है बिन पहने लो। वैसे तो बचपन से योगा चैंपियन हूँ, आराम से घुस जाऊंगा। मेरी बॉडी भी एकदम स्लिम ट्रिम है वैसे। आराम से ये घुस जाऊंगा। अभी लटक गया लगता है। क्या पत्ता बांटा है यार। ये जोकर भी है। ये लाइट को क्या हुआ? ये लाइट आग क्यों मार रही है? देख तो कौन है वहाँ? ए हीरो, कौन है तू? हाँ, सबके दरवाजे पे है। हेलो, बहरा है क्या? कौन है बे तू? मुंह पे टॉर्च क्यों मार रहा है? इधर मार। अबे हाथ पकड़ रहा है। कौन है ये? बहुत डेयरिंग वाला लग रहा है यार। ए भाई, कान में केवड़े का तेल डाला है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ पर और कितने टैंक है? अबे कान पट्टी दूं क्या? ये भाई शादी में है, कहाँ घुस रहा है? तुम लोगों की बारात में आया हूँ। चल। भाई कौन है ये? तुमको धक्का दे दिया? हाँ मामा। अरे भांजे, तू तो पतली गली से निकल गया। एक और सलिया तोड़ता तो मैं भी मस्की की तरह आता। मेरा पेट फंस गया यार। इसीलिए बोलता हूँ कम खाया करो। बताता है। ए वॉचमैन,